Good morning students. In previous lecture we completed the exercise of this chapter. Now today we will revise the whole chapter, right? इस चैप्टर की मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हमने करे थे, ताकि आप इस वीडियो को देख के आपको फिर से पिछले वाले टॉपिक क्या हो जाए, रिमाइंड हो जाए, राइट? सबसे पहले हमने चूज द करेक्ट ऑप्शंस करे थे. विच मेटल इज कोटेड ऑन द कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड? कौन सा मेटल कोटेड होता है कैंस पर स्टोरिंग फूड करने के लिए? टिन, राइट? विच मेटल इज कोटेड ऑन द कैंस? टिन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द डैश इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है किस पे बेस है? वो केमिकल इफेक्ट्स पे बेस है. किस पे बेस है? वो केमिकल इफेक्ट पे, राइट? नाउ नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोज ड्यू टू डैश हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो लैम्प है कब ग्लो करता है? ड्यू टू हीटिंग अफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोज ड्यू टू हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट फोर्थ वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इनमें से जो लिक्विड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं. कौन सा नहीं करता है? शुगर सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? नाउ नेक्स्ट वन इज, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस विच टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर. किस टाइप की एनर्जी यूज होती है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना उसमें यूज. Which type of energy is used? Electrical energy is used for the decomposition of water, right? Now next one is, which of the following objects does not have chromium plating. इनमें से जो objects दिए हैं किनमें chromium plating नहीं होती है, ठीक है? Which of the following objects does not have chromium plating. chromium plating किस पे नहीं होती है, ठीक है? फ्राइंग पैन पर जो क्रोमियम प्लेटिंग है वो नहीं होती है. किस पे नहीं होती है? फ्राइंग पैन्स पर. ओके, नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस. इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस. नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ टॉर्च बल्ब in the tester is used to detect small current in the electric circuit. कौन से बल्ब्स होते हैं वो? एलईडी, ठीक है, जिससे हम वो स्मॉल करंट को भी वो डिडक्ट कर सकते हैं. इसीलिए हम कौन से बल्ब यूज करते हैं? एलईडी, राइट? नाउ नेक्स्ट वन इज, डैश इज एन इंसुलेटर. कौन है? वुड. वुड इज एन insulator. Now next one, which of one of the following is not an electrolytic solution. कौन सा electrolytic solution नहीं है? Alcohol. Alcohol is not an electrolytic solution. Okay, now filling the blanks. Most liquid that conduct electricity are solution of acid, base and salts, right? The passage of an electric current through a solution cause chemical effects. Okay, small amount of mineral salt present naturally in water makes it a conductor of a electricity. Now fourth one, flow of electric charge in particular direction constitute electric current. Flow of electric charge in particular direction constitute electric current. A liquid that conducts electric current due to positive ions and negative ions is known as electrolyte. The closed path through which the current flows is called circuit. Distilled water is an insulator of the electricity, right? Fifth, one of the most common applications of chemical effect
of electric current is electroplating. क्या आएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ये सब आपको सब पॉइंट्स डिस्कस हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में जब एक्सरसाइज करवाई है तब भी कर चुके हैं. क्लियर? राइट. नाउ नेक्स्ट वन. Electrolytic solution conduct electric current due to chemical effect of the electric current. Electrolytic जो solution है conduct electric current due to chemical effect of the electric current. Right? Now, deflection of magnetic compass shows that current is passing in the tester circuit. The deflection of magnetic compass. The deflection of magnetic compass. Bulb glow due to heating effect of electric current. Bulb glow due to heating effect of electric current. Now, true or false? All the solutions conduct electricity. All the solutions? No, false. A deflection in the magnetic compass kept nearby the circuit shows the flow of current in the circuit. It's a true. LED glows even when a small electric current passes through it. It's also a true. When sugar is dissolved in pure water, it conducts electricity. It's a false. Petrol is a good conductor of electricity. It's also a false. When sodium hydroxide is added to distilled water, it conducts electricity. It's true. Electrolytes do not conduct electricity due to the movement of electrons. It's a true. LED is an electric device which is used in the tester. It's a true. Most liquids that conduct electricity are the solution of acid, bases and salts. It's true. Right? Now, answer the following questions in one sentence. Give the names of different types of electric testers. Different types of electric testers के बारे में बताना है. There are three types of electric testers: torch bulb testers, LED testers, electromagnetic testers. Right? How we check that liquid conduct electricity? For checking whether the given liquid conducts electricity or not, we can use the electromagnetic or LED testers. Okay. What is electroplating? The process of depositing a layer of any desired metal on another metal by means of electricity. It is called electroplating. What do you mean by chemical effect of the current? The passage of an electric current through a conducting liquid causes chemical reaction. The resulting effects are chemical effect of a current. The passage of an electric current through a conducting liquid. ठीक है, करंट पास हो रहा है किसमें? कंडक्टिंग लिक्विड में से. किसके कारण? केमिकल रिएक्शंस के कारण. राइट? तो जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट. राइट. नाउ व्हाट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? गिव टू एग्जांपल्स. द मटेरियल विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उसके एग्जांपल्स हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम. नाउ व्हाट आर द इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? Give two examples. The material which do not allow electric current to pass through them are called insulators of electricity. For examples हैं wood and rubber. Now, next, which part of the bulb glows due to the flow of current? Due to heating effect of the current, the filament of bulb gets heated to a high temperature and it starts glowing. Okay? बल्ब का फिलामेंट जब हीट होता है तब ऐसा होता है. Right? Now, what is the magnetic effect of electric current? The compass needle shows deflection when it is nearby current carrying wire. Right? The conducting wire behaves like a magnet. This phenomena is known as magnetic effect of the current. फिर उसके बाद 3-4 सेंटेंस करे थे हमने. Give the names of different types of testers. In which situation they are used? 3 types थे.
ठीक है। तो जब हमने हाई करंट को डिटेक्ट करना है तब हम कौन सा टॉर्च बल्ब टेस्टर्स का यूज़ करते हैं। जब हमने वीक करंट को डिटेक्ट करना है तो एलईडी का यूज़ करते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टर्स हैं वो एज कम्पेरेटिव टू एलईडी टेस्टर्स से चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। इसीलिए एलईडी टेस्टर्स हम वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसकी जगह हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो इतने कॉस्टली नहीं होते। एलईडी टेस्टर्स कॉस्टली होते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद हमने डिस्कस करा था डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई, हाउ कैन वी मेक इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि डिस्टिल वाटर में मिनरल्स और सॉल्ट अवेलेबल नहीं होता, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। पर यदि हम उसमें क्या कर दें, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड, बेस या सॉल्ट ऐड कर दें तो वो भी क्या बन जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। फिर इन केस ऑफ फायर, बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर होजेज दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया। एक्सप्लेन वाई दे डू दिस। वो कह रहा है कि जब आग लगती है तो फायरमैन क्या करता है, पहले उस एरिया की मेन सप्लाई क्यों बंद करता है पानी डालने से पहले जहाँ पे आग लगी होती है। क्योंकि जो टैप वाटर है उसमें क्या है, वो गुड कंडक्टर है, राइट। यदि वो मेन सप्लाई को बंद नहीं करेगा उस एरिया की तो उसको भी क्या कर लग सकता है, करंट लग सकता है, ठीक है। इसीलिए उसको सबसे पहले बंद करनी होगी तभी वो पानी डालेगा, अदरवाइज उसकी लाइफ भी जा सकती है। क्लियर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ए चाइल्ड स्टेइंग इन ए कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड आल्सो द सी वाटर विद हिज टेस्टर। ही फाइंड्स दैट द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स मोर इन द केस ऑफ सी वाटर। सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। ड्रिंकिंग वाटर में इतने मिनरल सॉल्ट अवेलेबल नहीं होता है, जिसके कारण सॉल्ट वाटर से जो नीडल है, जो एज अ टेस्टर वो यूज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक नीडल, वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन करेगी इन केस ऑफ अ सी वाटर, because sea water is more salty as comparative to drinking water, right। ड्रिंकिंग वाटर में ना इतने मिनरल्स और सॉल्ट अवेलेबल नहीं होता है, पर सी वाटर में बहुत ज़्यादा होता है, राइट। फिर नेक्स्ट था इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिक रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। नो, क्योंकि जो रेन है वो गुड कंडक्टर है। क्योंकि रेन में सिंपल रेन होती तो गुड कंडक्टर नहीं होती, पर रेन में जब वो एयर के साथ मिल जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी थिंग्स हैं जिसके कारण, एयर के कारण वो मिक्सड हो जाती है। जो पॉल्यूटेंट्स के पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्ट होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, रेन वाटर में मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण रेन वाटर में मिक्स होने के कारण वो रेन वाटर को गुड कंडक्टर बना देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके वो सेफ नहीं रहेगा यदि वो इतनी बारिश में जो इलेक्ट्रीशियन है वो आउटडोर्स में कोई भी बाहर के हमारे हिस्से में इलेक्ट्रिकल रिपेयर करेगा तो उसके लिए वो सेफ नहीं रहेगा, उसको करंट भी लग सकता है, राइट। फिर लिस्ट बनानी है कि इलेक्ट्रोप्लेटेड हमारे आसपास कहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सम पार्ट्स ऑफ अ कार, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, स्पून्स, हैंडल बार ऑफ साइकिल, रिम ऑफ साइकिल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, टिन कैन, ब्रिज गिरदर। तो ये क्या है, ये सब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटेड करी जाती है। फिर साइंटिफिक रीजंस थे, एक जो पेंसिल है शार्प्ड एट द बोथ एंड्स कैन बी यूज एज अ कंडक्टर इन लेबोरेटरी। जब एक शार्प पेंसिल है दोनों साइड से उसको शार्प कर दोगे वो गुड कंडक्टर क्यों बन जाती है, वो कंडक्टर है, वो क्या करेंगे, वो कंडक्टर होगी जो लैब्स में उसको एज अ कंडक्टर हम यूज़ कर पाएंगे। यस, क्योंकि दोनों तरफ से आप शार्प कर दोगे तो उसमें से क्या निकल जाएगा, ग्रेफाइट निकलेगा। जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। तो इसलिए ये जो एज अ कंडक्टर्स हम लैब्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिशियन यूजेज द रबर सोल स्लीपर्स वाइल वर्किंग विद द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। क्यों, क्योंकि वो इंसुलेटर है रबर,
वो अपने में से इलेक्ट्रिक को पास आउट नहीं होने देता। यदि कभी वायर्स लूज होती हैं या लीकेज ऑफ करंट होता है या कोई फॉल्ट होता है जिसके कारण उसको करंट लग सकता हो, पर उसे यदि रबर की चप्पल वेयर, जो रबर के स्लीपर्स वेयर करे हों, तो जो इलेक्ट्रिशियन को उससे करंट नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट वो पास आउट नहीं होने देता है। ओके। फिर जो टिन कैन्स है यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन। जो टिन है वो कम रिएक्टिव है आयरन से, उसमें जो आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग करी जाती है ताकि उसमें हम कोई भी फूड को स्टोर करके रख सके। कोई फूड को स्टोर करके रखेंगे तो वो खराब नहीं होगा क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करेगा, पर आयरन में रख देंगे सीधा तो आयरन के साथ तो वो रिएक्ट कर जाएगा, राइट। इसीलिए उस पर कोटिंग करी जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है टिन की, किस पे, कैंस पर, राइट। फिर मैच द फॉलोइंग्स थे। मैच द फॉलोइंग्स में इंसुलेटर्स को, इंसुलेटर क्या है, रबर है। कंडक्टर क्या है हमारा, कॉपर है। क्लोज पाथ क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर एलईडी टेस्टर्स क्या थे, टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। सॉल्ट सोल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या था, टू प्रिवेंट रस्टिंग था, राइट। तो यहाँ पे मैंने फिर से भी चैप्टर आपको बता दिया है, फिर से रिवाइज करवा दिया है। अब आपको सारे टॉपिक फिर से रिवाइज हो गए होंगे।